Starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding the functions of the board of directors. In the previous lecture, we ended up on the topic that is oversight function. In today's lecture, we are going to continue our discussion, and the topic that we are going to discuss at the start is directional functions. As we have discussed, that board of directors have to consider oversight functions, directional functions, and advisory functions. We have already discussed the oversight functions. As long as the directional functions are concerned, we have to consider that what sort of directions a board may provide to all the subordinates working under their supervision. Now, the very first directional function that the board can perform is setting the mission statement. As we have the idea that as long as the prospectus of the company is concerned, or you may say the annual report of the company is concerned, the mission and vision statement is very much important. हम जब जब मिशन और विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं, हमने ये बात जहन में रखनी होती है कि you must have to consider the short term objectives and you must have to consider the long term objectives. It's not like कि आपने सिर्फ एक ही टेन्योर को टारगेट करना है. Vision is basically more tilted towards the future of the company. What you have visionarize regarding the company. और विजन हमारा ये होता है कि हमेशा वो लॉन्ग पैटर्न का होता है. कभी हम नहीं कहते जी सर मेरा विजन है कि मैंने इस साल ही जिंदगी गुजारनी है. नो, द कंपनी मस्ट हैव टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो विजनरी स्टेटमेंट्स और विजनरी कंडीशंस को फुलफिल करना भी बोर्ड की डायरेक्शन और मिशन सेट करना भी बोर्ड की डायरेक्शंस के अंदर या बोर्ड के फंक्शंस के अंदर कंसीडर किया जाता है. Appointment of CEO and senior executive. As long as the very first chapter, that was your chapter number 1, is concerned, we discussed that after the election of the board of directors or after the selection or the appointment of the board of directors, the next step is basically that among the board, someone will be given the authority, someone will be given the designation of the president or the CEO and the senior executive. यानी जब हमने फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं. उन इंटरनल मीटिंग्स में फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही इलेक्शन का प्रोसेस करते हैं और डिसाइड करते हैं दैट हु शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट और द डायरेक्टर और द चीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी. फिर इसमें बाकी एग्जीक्यूटिव भी आ जाते हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर भी आ जाता है, एडमिन डायरेक्टर भी आ जाता है, प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर आ जाता है, उसके अलावा फाइनेंस डायरेक्टर CFO आ जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाता है. तो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव within the board will be appointed, and it is basically the duty or the function of the board to have the proper election, to have the proper selection of the executives that will lead their department in the future. हम अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, एडमिन डिपार्टमेंट अलग है. जब उनके हम डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी उनके जो चीफ या सीनियर एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, later on they will give the directions to their subordinate as well. यानी उस डिपार्टमेंट में जो जो मैनेजर्स होते हैं, जो जो सबऑर्डिनेट्स या जो जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी डायरेक्शनल एक्टिविटी फिर उस एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जाती है. और हमने इनिशियल स्टेजेस में बोर्ड ने क्या करना है, तमाम लोगों को एग्जीक्यूटिव पोजीशन डेजिग्नेट करनी है. Planning for succession. Succession is basically an idea in which you are making yourself or you are preparing yourself for the future activity. That one day the person will have to leave this organization, will have to leave this world as well. So in that situation, who will lead the company? Who will be the next president? Who will be the next CEO? I am not going to compare this situation with the political setup within our country. लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर समझाऊं कि आप लोगों में से अक्सर लोगों को ये बात मालूम होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो जो
हमारी पार्लियामेंट है वो क्या हो जाती है, वो 5 साल की मुद्दत होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, नई पार्लियामेंट आती है। लेकिन जो कि हमारा जो ऐवान बाला है, ऐवान बाला कहते हैं जिस मतलब जिस जो सुप्रीम होता है, इससे भी 2 नंबर आगे होता है, वो हमारा क्या कहते हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर कोई 5 साल की मुद्दत नहीं होती। उसका सिस्टम क्या होता है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं, 2.5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। हाफ मेंबर्स will leave that job or will leave that seat, and half members will remain there. After 2.5 years जो नए लोग आते हैं उनमें से फिर उसके ऐवान बाला जिसे हम कहते हैं, उसके मेंबर 2.5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। आधे जो लोग पहले इलेक्ट हुए पड़े होते हैं वो आज 2.5 साल बाद वो फिर लीव कर जाते हैं, मतलब तकरीबन 5 साल का टेन्योर होता है टोटल, और हर 2.5 साल के बाद उसके इलेक्शंस होते हैं। हाफ मेंबर्स छोड़ जाते हैं, हाफ रहते हैं, और नए हाफ आ जाते हैं। फिर वो नए हाफ 2.5 साल तक रहते हैं, और जो वो पुराने हाफ रह गए थे वो चले जाते हैं, और फिर ये वाले अगले 2.5 साल तक रहते हैं। तो ये क्या है कि that is basically the planning for succession. You have the idea कि in the future you will leave this job, you will leave this company. So who will be the next person? So succession activity is very much important. It should not be like that if someone will die or if someone will leave the job, the rest of the participants will not be able to perform their activity. नहीं, हम succession का concept लेके इसीलिए आते हैं कि अगर कल को ये बंदा यहाँ पे ना रहे तो who will be the person who will lead that department or the organization. So in that case you will observe कि जब हम succession activity कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे भी एक डायरेक्शनल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। हम अपनी जो कंपनी की डायरेक्शंस हैं उसे सही पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आइडिया हो रहा है कि ये कंपनी कल को ऐसी कंडीशन में आ जाए कि कोई इसे लीड करने वाला सही बंदा ना हो, या इसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होने वाली हो। इस सारी सूरत हाल को हम क्या कर रहे होते हैं, टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एट द एंड वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट पॉइंट, दैट इज बेसिकली द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमेटी। अब कमेटी जो है, ऑडिट कमेटी होती है, क्या नाम है, बजट कमेटी होती है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कमेटी होती है। इस तरह की डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती हैं। अब कमेटी का कॉन्सेप्ट होता है क्या है, कमेटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 3 लोगों की एक्सीलेंस होती है, 3 लोगों को एक काम असाइन कर दिया जाता है, दैट इज somehow considered as the prominent work within an organization. जो हमें लगता है कि यार ये इम्पोर्टेंट काम है। अब तमाम डायरेक्टर या एक डायरेक्टर उस काम को बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि हम कमेटी का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। कमेटी में क्या करते हैं कि 3 या 4 लोग जिनकी उस काम में एक्सीलेंस होती है, हम उसको एक वो ड्यूटी दे देते हैं कि ठीक है इस मामले को आप देखें। जब हम कमेटी क्रिएट करते हैं तो वो फिर उस पूरे मामले को टैकल करती है, ये उस पूरे मामले को लेके चलती है, और इसकी अपॉइंटमेंट भी एक डायरेक्शनल फॉर्म में होती है। कमेटी मोस्टली जो होती है वो महीनों महीनों तक वो काम कर रही होती है। महीनों महीनों का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि जो भी एक्टिविटी वो करेगी ना, वो ऐसे बहुत छोटी सी बात नहीं होती, वो कोई ना कोई ऐसे प्रोमिनेंट वर्क्स होते हैं, जैसे कि ऑडिटिंग करवाना। अब जिस 2 महीने या 1 महीने में पूरी ऑडिट का प्रोसेस कर रहा होगा, उस ऑडिट के प्रोसेस को क्या कहते हैं। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट जब कर लेंगे तो ये भी एक डायरेक्शनल एक्टिविटी ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि तमाम की तमाम कमेटियां फिर हमारे पूरे आगे हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे फुलफिल करने में अपना रोल अदा करती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो द लास्ट बेसिकली द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेंटेंस, माई वर्ड्स, दैट functions of board of directors can be the important factor or can be the important question for your exams. No need to consider it as the roughly topic or the normal topic. So that topic can be very much important or significant as long as your papers are concerned. Now,
Basically in the advisory function we are just providing certain guidance. Advisory doesn't mean that we are truly involved in that activity. हम उसके अंदर खुद वो काम नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं, हम एडवाइस कर रहे होते हैं कि यार आप ये काम ऐसे कर लो. In the previous lecture, that was I think the lecture number 9, when we discussed the टॉपिक टिल ओवरसाइट फंक्शन, वहाँ हम एक बात की थी कि हमने जब एडवाइजरी फंक्शंस को परफॉर्म करना है तब हमने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की एग्जांपल जैसे मैंने डिस्कस की थी, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड को कहना है कि सर एक्चुअली बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट हमने खरीदनी है इसकी डिफरेंट कोटेशंस है मार्केट में इसमें डिफरेंट कंपनीज इसे मैन्युफैक्चर करती हैं, क्वालिटी वाइज डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं. आपने क्या करना है, आपने उस जगह से परचेज करना है जहाँ पे इसका रेट सबसे कम हो, जिसकी क्वालिटी सबसे बेहतर हो. ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आप उस डायरेक्टर को अपने साथ बिठा के एडवाइस कर रहे होते हैं, आप उसे समझा रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, हमारा मेन मकसद क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ द मेजर गोल दैट वी वांट टू टारगेट. उस सारी बात को जब आप उसे बता देते हैं, उसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म योर एक्टिविटी इन अ वेरी राइट मैनर. ठीक है, तो एडवाइजरी फंक्शन is basically the guidance that the board of directors are going to provide to the subordinates. अब उसमें पहले है जनरल गाइडेंस टू द मैनेजमेंट. जनरल गाइडेंस में मेरी बात वही वाली कंप्लीट हो रही है कि आपने उन्हें गाइड कर देना है, उन्हें कहना है कि जी आपने हम आपके अंडर जो जो सबऑर्डिनेट्स हैं हमने उनको इस चीज़ को चेक करना है, आपने ये काम करवाना है, इस काम को ये तरीक़ेकार है, इसको इस तरह फॉलो करना है. आपने रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उन्हें गाइड कर देना है कि दीज आर द रूल्स, दीज आर द रेगुलेशन, दैट इज़ द पॉलिसी दैट वी हैव टू फॉलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये तमाम के तमाम फैक्टर्स आप उन्हें वक्तन फवक्तन बताते जाएंगे. What is the major purpose of that? What is the major purpose of that? Because you have the idea that as an executive of the company, you cannot be at that particular situation in which that person will be in the future. यानी मैं सुपरवाइजर नहीं बन सकूंगा, मैं कभी जाके लेबर को यूं खड़े होकर नहीं देख सकूंगा, मुझे नहीं पता चलेगा लेबर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो मैं उस सुपरवाइजर को अपने पास बुला के या उस लोअर लेवल मैनेजर को बुला के या मैं मिडिल लेवल मैनेजर को बुला के कुछ गाइडेंस दे दूंगा कि यार आपने ये चीज़ें चेक करनी है, लेबर आपके पास कितने बजे आता है, उसने काम ठीक किया है नहीं किया, छुट्टी पे चला गया है, किस चीज़ को क्या रिपोर्ट करना है, किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है. जब तक आप अपनी जो गाइडेंस की एक्टिविटी है उसे सही नहीं कर रहोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट पर्सन विल गिव यू द राइट रिजल्ट. वो बंदा आपको राइट रिजल्ट्स कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे जो आपने गाइड किया उसके हिसाब से उसकी अपनी एक्टिविटी करनी थी. If you created or you gave the wrong guidance, or if you didn't guide that person, it is your fault, not the fault of that person. उसे वो कहेगा मुझे तो बताया ही नहीं कि आपने मुझे ऐसी कोई बात ही नहीं की, मुझे क्या पता आपने ये काम मुझे इस तरह करवाना था. तो जनरल गाइडेंस टू मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. स्पेशलाइज्ड ओवरव्यू, now that is very much important. मैंने कल भी ये बात की थी, या जब मैंने लास्ट लेक्चर आपसे डिस्कस किया था मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी कि जो ओवरव्यू है उसे बार बार देखना लाजमी है. ओवरव्यू में हम दो पैटर्न्स को देखते हैं कि इज द वर्क हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. उसमें हम ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, अगर ज़्यादा है तो वो एफिशिएंसी कंसीडर होगा जिसमें हमने उसे रिवॉर्ड देना है. क्या वो हमारे टारगेट से कम तो नहीं कर रहा, अगर नहीं करना तो या तो हम पेनल्टी क्रिएट करेंगे या हम वो सर्कमस्टांसेस या उन रीजंस को मालूम करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजन दैट पर्सन डिडंट परफॉर्म द एक्टिविटी इन अ राइट वे. तो ये ओवरव्यू आपने लाजमी रखना है चीज़ों का. आपने कभी ये गाइडेंस देके और कल को एक महीने बाद या एक साल बाद नहीं पूछना जी हाँ मैंने आपको बात की थी. आप फिर बाद में चीज़ें देखेंगे कि जी क्या मैंने जो इसे काम किया था इसने उस मैनर में या उस तरीके कार से अपना काम किया है. अगर किया है तो इसे एफिशिएंसी हुई है या डेफिशिएंसी हुई है. एफिशिएंसी है तो रिवॉर्ड दो, डेफिशिएंसी है तो पेनल्टी करो, या अपनी चीज़ को उसमें मोल्डिंग करें या उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए, उसमें मॉडिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें. एक्सपर्ट ओपिनियन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. नाउ दैट इज अ वेरी मच considering thing that the board should consider, that they are not all in all within an organization. It is not possible that board of directors should be a very skilled person who should have the idea about
360 एंगल्स। कंपनी के अंदर 360 एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक कंपनी की हर लिहाज से, हर जगह से जहाँ जहाँ वो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में पता होना। ये 360 एंगल रियर केसेस में होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आईटी के अंदर स्ट्रांग होंगे, एचआर में वीक हो सकते हैं, एचआर में वीक हो सकते हैं, मार्केटिंग में स्ट्रांग हो सकते हैं, मार्केटिंग में स्ट्रांग हो सकते हैं, फाइनेंस में वीक हो सकते हैं। तो जो भी कमेटी बना रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लाजमी रखनी है। तो एक्सपर्ट की बात अब हम कैसे सुनेंगे? एक्सपर्ट के लिए हम बाहर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं और इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं। इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लेंगे उसको ऑल इन ऑल नहीं समझना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस मैनेजर से कहता हूँ कि क्या हम फंड्स क्रिएट कर सकते हैं, वो मुझे कहता है जी सर हम कर सकते हैं, तो हम उसी के बात पे नहीं रह जाएंगे, हम एक्सटर्नल सोर्सेज भी ढूंढने लग जाएंगे साथ साथ कि अच्छा फंड्स कहाँ कहाँ से हमारे पास आ सकते हैं। अगर हम ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट वाला तो मैं कहेगा सर मैंने तो सारा काम ठीक किया, लेकिन आप एक्सटर्नल ऑडिट का भी ले लोगे पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक्सटर्नल ऑडिट भी चेक करने लग जाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड आपके पास आ रहा है, कहते हैं सर हमने बड़ी कमाल की मार्केटिंग कर लिया, हर चीज़ को एडवर्टीजमेंट सही कर लिया, तो उसकी बात पे नहीं रहना, आपने एक्सटर्नल सोर्सेज में चेक भी करना है कि क्या वाकई मार्केट के अंदर जो एडवर्टीजमेंट है वो हम उस लेवल की है जो हम कर रहे हैं, या मार्केट के अंदर कहीं लेवल हप है और हमारा उस लेवल पे अभी तक हम नहीं पहुंचे। Fine. So if we will get certain expert opinion in that particular activity in which we are considering ourselves a, as a low skilled or unskilled person, so it is not a very much hectic activity or it is not very much insulting activity. It is your function to do that. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास स्किल्स नहीं है और अगर मैं किसी और से लूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा या मेरी जो है ना एक्सपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा। नो, इट वाज योर ड्यूटी, यू वर सपोज टू टेक द एक्शन, यू वर सपोज टू परफॉर्म द एक्टिविटी फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड यू डिड दैट। फाइन। तो ये आपके एडवाइजरी फंक्शन में आती हैं ये चीजें। ठीक हो गया। टूल्स अवेलेबल टू द बोर्ड। नाउ व्हाट we have discussed already that these three functions, oversight function, directional functions and advisory function, ये तीन functions तो और board of directors ने करने ही करने हैं। अब किन तरीकेकार से वो कौन कौन से टूल्स हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अवेलेबल होते हैं ताकि वो ये सारे काम कर सकें। वेरी फर्स्ट इज बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड बनाया किस लिहाज से? अगर हमने एक्सपर्ट बंदा ही एक्सपर्ट काम के लिए एक्सपर्ट जगह पे और एक्सपर्ट डिपार्टमेंट को दिया है तो फिर तो हमारा काम कोई मसला ही नहीं है। हमारी कंपोजिशन ऐसे है कि हमने सीएफओ के अंदर एक ऐसा बंदा हायर किया जो एमबीए जिसकी डिग्री है या जो पीएचडी की डिग्री है फाइनेंस में, उसके आइडिया है कि यार ये काम बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। एचआर के अंदर एचआर का जो है ना पीएचडी बंदा हमने लगाया है, उसके बाद स्किल्स हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस का फैक्टर हमने पूरा किया, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। कंपोजिशन आपका बोर्ड अब बोर्ड बना ही इस लिहाज से कि जिसमें हर इलाके की जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हर सेक्टर की एक्सपर्ट लेवल है, एक्सपीरियंस लेवल है। फिर आपके लिए ये चीज़ें नहीं है। आई एम गोइंग टू गिव एन आइडिया रिगार्डिंग द लेटेस्ट डिसीजन जो अभी कुछ ऐसे कंट्री का मैं सुन रहा था कि जिसमें कंपनी जो है ना जो कैप्टन्स थे ना बोर्ड के अंदर, जो उनका जो वो मेरे ख्याल से ईसीबी था, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने उन दो तीन प्लेयर्स को जो कि करंटली प्ले कर रहे हैं उन्हें बोर्ड का मेंबर बना दिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इन लोगों को एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने का, और हम क्योंकि बैठे हैं एक ऑफिस के अंदर, वी डोंट नो that what will be the actual challenges that the players will face। तो ये बंदा जिसे अब हम हायर कर रहे हैं, ये बंदा हमें वो तमाम मसाइल या जो तमाम परेशानियां जो कि प्लेयर्स एक्चुअली फेस करते हैं उसको ये हमें हाईलाइट कर देगा, और फिर हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेंगे या कोई ना कोई रेमेडी क्रिएट करेंगे जिससे वो चीज़ सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी चीज़ें आप करनी पड़ती है, आपको कंपोज करना पड़ता है बोर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द situation or the system। Then we have the independence of the board। The board must have
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मसला ये होता है कि डिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक्टिविटी पे 1 साल से पहले कोई क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं कर सकता। वो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड पे लग जाए, या कोई वो जो जहाँ से हमने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनमें अराइज होने लग गए, उन्हें अपने पर्सनल बेनिफिट्स को ज़्यादा वेटेज देने लग गए एज कम्पेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी, तो ये सारी सिचुएशन जो है ना कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक बनने लग जाती है। तो बोर्ड में ऐसे लोग लाजमी होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो कि ओवरव्यू दे सकें, जिनका खास ताल्लुक अपने बेनिफिट्स के लिए ना हो, कंपनी के बेनिफिट्स के लिए हो या शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए हो। वो जब भी ऐसी कंपोजिशन आप क्रिएट करेंगे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से काम करने में हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, कमेटीज किस किस्म की हैं, मैंने अभी अभी हमने इस बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। That committee can perform many practical or the applicable activities that cannot be done by the board in a fruitful way. बोर्ड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो एरिया को टारगेट करना चाह रहा होता है और फिर अपने ही मेंबर्स में से या अपने मैनेजर में से एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिससे वो जिसे कमेटी का नाम दे दिया जाता है, और वो तमाम उस जगह पे जाके उस एक्टिविटी को टारगेट करने लग जाते हैं, तो वो कमेटी का कॉन्सेप्ट आता है जो कि बोर्ड को अपने काम करने में या एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्पफुल साबित होती है। एक्सटर्नल हेल्प वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि हमें बैरूनी मदद लेनी पड़ती है, वेदर इट विल बी रिलेटेड टू फाइनेंस, हमें फाइनेंस के लिहाज से लेनी पड़ती है, वेदर इट विल बी रिगार्डिंग द ऑडिटिंग एक्टिविटी, हमने ऑडिट के लिहाज से लेनी पड़ती है। हम कोई ना कोई एक्सटर्नल पार्टी से कुछ ना कुछ हेल्प लाजमी लेते हैं ताकि हमारा काम क्या हो सके, बेहतर अंदाज में हो सके, हमारी चीज़ें क्या हो सकें, बेहतर अंदाज में हो सके, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट हो सकें, हम कोई ऐसी सिचुएशन में ना पड़ जाएं जो कि ऑब्स्टेकल आ जाए या जो आगे से क्या आ जाए, हर्डल क्रिएट हो जाए जिसके आगे आप ना आगे जा सके ना आप उसके पीछे आ सके। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल बंदा आपको बेहतर आइडिया दे सकता है अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, मोर ओवर दैट पर्सन कैन गिव यू the can give you the greater insight of the company. Government intervention, that is a very much important factor that we have to consider. आपने गवर्नमेंट को एज अ टूल लेना है अपनी एक्टिविटी को फ्रूटफुल अंदाज में परफॉर्म करवाने के लिए। गवर्नमेंट को कब जब आप ऑब्स्टेकल लेने लग जाएंगे, दो दैट द कंपनी कंसीडर गवर्नमेंट एज एन ऑब्स्टेकल, वो कहते हैं गवर्नमेंट को हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, लेकिन आप वो सारे लेयरीज जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट से अटेन करते हैं वो आप कभी नहीं कंसीडर करते। कल को अगर आपके नाम के साथ कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ गवर्नमेंट का नाम हट गया, हो सकता है आपकी शेयर की प्राइस कम हो जाए, लोगों के अंदर जो गुडविल है या जो लोगों के अंदर जो ट्रस्ट का लेवल है वो कम हो जाए, लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का सोचे भी ना, क्योंकि उन्हें पता चले ये कंपनी तो गवर्नमेंट की है ही नहीं, कल को भाग जाए, इसकी एक्टिविटी सही है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया हुआ है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको टैक्स जब आप जो क्या कहते हैं होते हैं, जब आप फाइलर बन जाते हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं आपको। आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम पे मिल जाता है, आपको आपकी एक्सपर्टीज जो चाहिए होती है गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करने लग जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट बिकम्स अ फ्रूटफुल एक्टिविटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पे बात है कि फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क क्या है। फंक्शन होता है काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है। काम करने में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसे कंसीडर करना पड़ता है। अगर पहले मैं इसमें एग्जांपल आपको दूं ताकि आपका माइंड क्रिएट हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपका काम है प्रॉफिट क्रिएट करना। प्रॉफिट तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि यू विल स्टार्ट द पाकर ऑफ फर्टिलाइजर इन एन एरिया in which there will be in which there will be the household society, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आपको जगह अच्छी मिल गई है, आप का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होती है, आप क्या सप्लायर के साथ और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ डीलिंग अच्छी हो जाती है, आप अपने काम करने लग जाते हैं। अब आप क्या कहें
کہ نہیں سر وی آر ناٹ کنسرنڈ ود دا سوسائٹی, اٹ از ناٹ آر ریسپانسبلٹی, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ود ایز لانگ ایز دا سوسائٹی از کنسرن. ہمارا تو کام تھا کہ ہم نے پروفٹ کریٹ کرنے, اور دیکھیں ہم نے جو ڈیسیژن لیے تھے پروفٹ تو کریٹ ہو گیا, ہم نے اپنا فنکشن صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں. تو فنکشن ڈزنٹ مین دیٹ یو ول اگنور دا ریسپانسبلٹی. کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ذمہ داریاں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں. Acting in the best interest of the company is the responsibility of the board. کمپنی نے کے بہتر فائدے کے لیے یا کمپنی کے فائدے میں کام کرنا is the responsibility of the board. Accountability of the owners. اب اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ اگر کسی بچے کو نہیں سمجھ آیا تو وہ بڑا آسان سا کانسیپٹ ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اسے, ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہم نے کمپنی نے ایکوائر کیا, وہ ہمارے ساتھ کام کرنے لگا. کل کو تقریباً کیا سکتے ہیں ہم 10 سال گزرے, ٹھیک ہے, 10 سال بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بورڈ آف ڈائریکٹر کی جو ارننگ ہونی چاہیے یا اس کے جو اثاثے ہونے چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ 2 ملین کے ہونے چاہیے, لیکن بٹ وی آر آبزرونگ دیٹ ہی ہیز دا ایسٹس آف 2 بلین. اب یہ کیا ہے, یعنی اکاؤنٹیبلٹی. اس نے 10 سال میں کمپنی سے اتنا کما لیا, اس کی سیلری اور ڈفرینٹ بینیفٹس اگر ہم کنسیڈر کر بھی لیں تو اتنی تو نہیں ہونی چاہیے کہ 2 ملین کے ریسورسز کی جگہ اس کے ایسٹس 2 بلین کے بن گئے. اٹ مینز یو آر ناٹ میکنگ دا بورڈ آف ڈائریکٹرز اکاؤنٹیبل. اب میں تو یہاں پہ فراڈ اور کرپشن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, باقی چیزوں میں بھی آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے آئی ٹی کے اندر بندہ ایسا لگا دیا ہے جس کی آئی ٹی کی ڈگری ہی نہیں ہے, جس نے کبھی آئی ٹی کا کام ہی نہیں کیا, جو مارکیٹنگ کی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے یا ایچ آر کی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے, اسے آپ نے آئی ٹی کا ہیڈ بنا دیا. آپ نے کس کی وجہ سے ہوا ہے, کون سی ایسی فورسز تھی جس نے آپ کو یہ کیا کہنا چاہیے برڈنائز کیا یا فورس کیا کہ دس پرسن شوڈ بی گیون دا ڈیوٹی ٹو ورک ایز دا ہیڈ آف دا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. یعنی آپ کی اکاؤنٹیبلٹیز کیا, یہ بہت بڑا کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا. ایسا بندہ جو کہ آپ کی کمپنی کے اندر مطلب اس کے اندر ایز این ایچ آر مینیجر آیا, آج وہ آئی ٹی کا ہیڈ بنا ہوا ہے جس کا آئی ٹی کی ڈگری نہیں ہے, جس کی کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے آئی ٹی کے اندر. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, کویسچنیبل ہوتی ہیں, کویسچن مارک کریٹ کرتی ہیں فار دا کمپنی. اس کے بعد ہے اسٹیچوٹری ڈیوٹیز. اسٹیچوٹری ڈیوٹیز آر مور ٹلٹڈ ٹوورڈز دا رولز اینڈ ریگولیشن. اسٹیچوٹری ڈیوٹیز آر مور ٹلٹڈ ٹوورڈ, یعنی جب ہم اسٹیچوٹری ڈیوٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو کنسیڈر کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پہلی ڈیوٹی کیا ہے کہ پراپر منٹس آف ایوری میٹنگ. اف یو آر کالنگ دا میٹنگ فار ایز اے بورڈ آف ڈائریکٹر, آپ نے اس میٹنگ کے منٹس کریٹ کرنے ہیں. اب منٹس کیا ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام ایکٹیویٹیز, وہ تمام کے تمام کام جو ایک میٹنگ میں پرفارم کرنے, انہیں ہم منٹس کا نام دیتے ہیں. پراپر منٹس فار ایوری میٹنگ از ویری مچ امپورٹینٹ فار دا بورڈ ٹو ڈو. یعنی بورڈ کی یہ ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ they have to create the proper minutes for every meeting before calling the meeting. It will not be like the situation کہ جب میٹنگ بلا دی, جی سر کیا کام ہے, کام تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہے, میٹنگ بس بلانی تھی وہ ہم نے بلا دی. نہیں, what was the reason, what was the objective of that meeting, میٹنگ بلائی کیوں تھی, کیا ریزن تھی, کیا کام کروانا تھا آپ نے میٹنگ میں. وہ تمام فیکٹرز, وہ تمام باتیں آپ نے منٹس کریٹ کرنے ہوتے ہیں. ڈلیور کاپی آف ایوری رپورٹ. اب شیئر ہولڈرز بھی, جو کمپنی کے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی, ایس سی سی پی بھی, اور رجسٹرار بھی, اور کیا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جن ڈسٹریبیوٹر یا پارٹیز جو کمپنی کے پارٹنرز میں آتی ہے, ان تمام لوگوں کو ہر میٹنگ یا ہر رپورٹ کی ایک کاپی بھجوانا ضروری ہے. رپورٹ میں وہ ان لوگوں کو آپ کے بات کیا رپورٹس کمپنی کی بھیج, اب اینول رپورٹ فار ایگزامپل وہ آپ کیوں بھیجتے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ بات کنفرم رکھنی ہوتی ہے کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی آر انفارمنگ time to time with all the related parties of the company which are directly involved or directly related with the company. تمام بندوں کو ہم نے ہر چیز بتا دی تھی. ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہیں کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں ہم نے کسی کو بتانے کا سوچا ہی نہیں ہو.
ہم نے ہر بات بتائی ہے, ہم نے ہر بات کو انفارم کیا ہے تاکہ کل کو کوئی بات ہمارے اوپر نہ آئے, ہم کسی ایسی سچویشن میں نہ آ جائے کہ جس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے جو ایکٹیویٹی کی تھی وہ کنسیڈر ہی نہیں کی گئی, ہم نے جو ایکٹیویٹی کی تھی وہ کوئی سن ہی نہیں رہا. ایسی سچویشن ہم سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کاپی دے دیتے ہیں رپورٹ کی کہ سر دس واز اے ڈیسیژن وی ٹوک اینڈ لیٹر آن وی امپلیمنٹڈ دیٹ ڈیسیژن, اور یہ اس کی کاپی ہے, ٹھیک ہے. فائنل ڈاکومنٹ فار رجسٹریشن آف کمپنی ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنی رجسٹریشن کرانا از ویری مچ امپورٹینٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا سورس ہے آپ کی انکم کا. آپ اپنے شیئرز کو اسٹاک ایکسچینج میں سیل پرچیز کرواتے ہیں تاکہ گڈ ول کریٹ ہو, آپ کے شیئر کی پرائس مارکیٹ میں بڑھتی ہے, آپ کے ساتھ کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے, آپ سے وہ پیسہ کریٹ ہوتا ہے. یہ تمام فیکٹرز کمپنی کنسیڈر کرتی ہیں. ٹرسٹیشپ ڈیوٹیز, آپ نے کچھ ایسے کام لازمی کرنے ہیں ایز این ڈائریکٹر اور دا بورڈ آف ڈائریکٹر کہ کمپنی کا ایک ٹرسٹ لیول کریٹ ہو سکے, ایک گڈ ول کریٹ ہو سکے ان دا مائنڈ آف دا انویسٹر. Approve reasonable transaction. All those transactions which you are considering reasonable must be approved by the board. بورڈ نے تمام کے تمام وہ کام, وہ فیصلے جو کہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے یا ان کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے تھے, ان تمام فیصلوں میں ان تمام فیصلوں کو اپروول لینی چاہیے. آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی, کوئی میجر ایکٹیویٹی کی, ان تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو جب تک آپ ایشور نہیں کروائیں گے, it will not be the ideal situation as a board of director or as a head of the director, as a head of the company. اس کے بعد ہے اپروو ٹرانزیکشن شوڈ بی اپرووڈ ان گڈ فیتھ, یعنی جو بھی ٹرانزیکشن آپ نے اپروو کی گئی ہیں وہ آپ نے اچھے کمپنی کے بینیفٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے کی ہیں. اب اس میں وہی والی بات آ جاتی ہے دیٹ دیر شوڈ ناٹ بی اینی سارٹ آف کنفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آنا چاہیے. کہیں پہ آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لینا جو آپ کو فائدے مند تھا یا آپ کے پرسنل بینیفٹس کے لیے تھا اور کمپنی نے اس کی وجہ سے نقصان اٹھایا. ایسی سچویشن سے آپ نے کوشش ہمیشہ یہی رکھنی ہے, یا بورڈ آف ڈائریکٹر ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سچویشن سے بچا جا سکے اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو لگے کہ کل کو یہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس ہے the last one is your disclosure of concerns in conflict of interest. In case of conflict, اگر آپ کو کوئی سی بات پہ اعتراض ہے آپ وہ بات ڈسکلوز کریں کہ سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں یہ کمپنی کو نقصان دہ ہو سکتا ہے یا اس کا یہ نقصان ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. کنفلکٹ کرنے کا حق آپ کے پاس ہے. لیٹر آن اف یو ول ناٹ ریکارڈ یور کنفلکٹ اور کمپنی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو کل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں نے یہ کنفلکٹ جمع کروایا تھا اپنا. اسے کہتے ہیں ریزرویشن. ریزرویشن کے اندر آپ یہ بات کیا کرتے ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ بات میں نے یہ کرنے کو کہا تھا اور یہ کام ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میں نے یہ جو ہے نا میں نے بتا دیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتے ہیں, میری یہ ریزرویشنز تھی, اسے میں نے ریکارڈ کروایا تھا. لیکن باقی بورڈ ممبرز کیونکہ ایگری تھے, they were ready to take the decision. So at that time I was not in that situation to have any much argument, but I did my job. میں نے اپنا کام کر دیا تھا. میں نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ, میں نے اپنا کنفلکٹ ریکارڈ کروایا تھا, میں نے اپنا آرگیومنٹ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ریزرویشن کو ریکارڈ کرا کے رجسٹرار کو بھی بھیج دی تھی اور جو بھی کنسرن پارٹیز تھی انہیں میں نے یہ بات انفارم کرا دی تھی. if there is any loss I will not be considered as the person who is responsible for that activity. ٹھیک ہو گیا. تو ڈسکلوز کرنا اپنے کنسرنس کو, یہ نہیں ہونا کہ خاموش بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے کہنا جی نو 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 if I will argue with the board it will not be in the good interest of mine. میرے فائدے کے لیے صحیح نہیں ہے کہ میں وہ کروں. نہیں, آپ کو سپوز ہی یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنا کنفلکٹ ریکارڈ کرانا ہے, آپ نے اسے ڈسکلوز کرنا ہے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے اور آپ کو وہ کام کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. انشاءاللہ we will continue our discussion in the upcoming lectures. So till then, Allah Hafiz.